عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات آئیے دیکھتے ہیں۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم میر تقی میر کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 اشعار کی تشریح ہو چکی، امید ہے کہ آپ نے دونوں اشعار کی تشریح کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج شعر نمبر 3۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سادہ یعنی بھولا بھالا، صاف دل رکھنے والا، جی دل، زیاں نقصان، وارا فائدہ، جانے ہے جانتا۔ یہاں اس شعر میں جی کے زیاں کا مطلب دل کا نقصان ہے، یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں عاشق جیسا سادہ اور صاف دل کوئی اور نہیں ہوگا، جو عشق میں اپنے دل کے نقصان کو بھی اپنا فائدہ ہی سمجھتا۔ اس شعر میں خدائے سخن میر تقی میر عاشق صادق کی تعریف کرتے ہیں کہ عشق و محبت کا میدان اتنا پرخطر راستہ ہے کہ اس وادی میں قدم رکھنے والوں کو بے پناہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن عاشق صادق کی سادگی یہ ہے کہ وہ بے لوث محبت کے ساتھ اپنی ہر تکلیف کو، راستے کی ہر رکاوٹ کو خندہ پیشانی کے ساتھ یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہادری کے ساتھ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی شان ہمیشہ باقی رہے، اور اسی میں فائدہ ہے۔ فیض نے اس مضمون کو کچھ اس طرح سے ادا کیا کہ جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گویا عاشق صادق کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ قیمتی وہ مقصد حیات ہے جس کی خاطر وہ جی رہا ہے۔ اس کے نزدیک اس جان کا نقصان بھی فائدہ مند ہے۔ عاشق کی معصومیت اسے یہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ کسی اور طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، اسی لیے وہ ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی کے بہترین مقاصد سے عشق ہی دلی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ عشق حقیقی میں عاشق صادق صرف اپنے مقصد کو اپنا محبوب جان کر اسی کو پانے کی جستجو کرتا ہے، اور اسی وارفتگی میں یعنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ کہ قدم کسی بھی موقع پر لڑکھڑائے نہیں، راستے کی ہر مشکل کو ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، اور ظاہری بربادی کو بھی اپنے لیے فائدہ مند ہی سمجھتا ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات میں۔ یعنی عاشق اپنے دلی جذبات بغیر کسی نفع نقصان کے اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے محبوب کی نظر عنایت کے۔ میر یہاں عاشق کے ان سچے جذبات کو احساسات اور حیرت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے
दरअसल उसे खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और इकबाल के बकौल की अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले। अजीज तलबा और तालिबात, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनियावी इश्क दिली ख्वाहिशात का असीर है, जबकि इश्क हकीकी में इंसान महबूब हकीकी के रास्ते पर अपनी जान को कुर्बान करना अपने लिए बाइसे एजाज समझता है। और यही वो इश्क हकीकी है जिसके बारे में कहा है इकबाल ने कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। अजीज तलबा और तालिबात, आइए अब हम चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। मीर की इस गजल का शेर नंबर 4 है, चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने। आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। चारागरी इलाज, बीमारी दिल, दिल की बीमारी, रस्म शहर हुस्न, हसीन लोगों के शहर का तरीका, दिलबरे नादा ना समझ महबूब, दर्द बीमारी चारा इलाज। यानी इस शेर में शायर ये कहता है कि बीमार दिल का इलाज करना महबूब के शहर की रस्मों रिवाज में शामिल नहीं, वरना नादान महबूब भी इस दर्द दिल का इलाज खूब जानता है। यहाँ दरअसल शायर ने रिवायती अंदाज में महबूब के जुल्म सितम का तस्करा बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है कि आशिक की बीमारी दिल का इलाज महबूब के पास मौजूद है, लेकिन हुस्न वालों के रस्म रिवाज में संग दिली और बेइतनाई तो है, लेकिन बीमारी इश्क का इलाज उनके रस्म रिवाज में शामिल नहीं। गोया वहां एक बेनियाजी और यहाँ लाखों तमन्नाएं, वो लापरवाह सरासर हम सरापा मुद्दवा ठहरे। यानी महबूब की फितरत में ही ये बात शामिल नहीं है कि वो आशिक की दिलजोई करे, उस पर नजरे इल्तफात डाले। हुस्न इश्क की उर्दू की शायरी में जो रिवायात हैं, उनके हवाले से आशिक हर दम न्याजमंदी और आजिजी के साथ अपनी वफादारियां निभाता है और महबूब इतनी ही संगदिली के साथ साथ अपने नाजो अंदाज पर फख्र गरूर करता है। गोया एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। या बकौल शायर, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने इस शेर में बड़े लतीफ अंदाज में महबूब से शिकवा किया है कि नादान महबूब भी आशिक के दिल का इलाज जानता है, लेकिन अपने गुरूर हुस्न पर नास करते हुए आशिक को नजरअंदाज करके गुजर जाता है। गोया दिल शिकन, तौबा शिकन, अहद शिकन, सब खिताब तेरे नाम कर डाले। और आइए देखते हैं अब शेर नंबर 5। याद रहे कि हम पहली गजल की तशरीह कर रहे हैं। इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है और 5वां शेर है, मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंजो किनाया रमजो इशारा जाने हैं। आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने। मेहरो वफा मोहब्बत और वफादारी, लुत्फो इनायत मेहरबानी करम, तंज
ताना या मजाक उड़ाना। किनाया पोशीदा बात, मुबहिम बात। मुबहिम बात ऐसी बात को कहेंगे जो किसी की समझ में ना आ सके, लेकिन जिसको बताना चाह रहे हैं उस तक बात पहुंच जाए। रम्ज इशारा, और ये कि किनाया और रम्ज ये दोनों ही इशारा के मायने में आते हैं। शायर कहता है कि अफसोस कि वो मोहब्बत व वफादारी और लुत्फ व इनायत व मेहरबानी जैसी खूबियों में से किसी भी एक से वाकिफ नहीं है, जबकि इशारों किनायों में तंजिया अंदाज इख्तियार करने में बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखता है। यानी शायर अपनी महबूब की शख्सियत पर उसके अंदाज़ो अतवार के हवाले से तबसरा करता है कि वो लापरवाही और बेहिसी में इस हद तक आगे है कि आशिक के नालो फरियाद की बिल्कुल परवाह नहीं करता, जबकि दिल दुखाने वाली गुफ्तगू करने में खूब माहिर है और इशारों और किनायों की बातों को भी खूब समझता है और कोई भी मौका जाने नहीं देता। ना नवाजिश, ना मुरब्बत, ना मोहब्बत की रमक, तेरा हर एक करम दर्द का उन्वान निकला। अगर हम मीर के हालात जिंदगी पर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि मीर ने जिंदगी में अपनों की सरदमेहरी और बेहिसी के दुख भी बहुत देखे। चुनाचे हम ये भी कह सकते हैं कि शायर अपने गिरदोपेश के हालात वाकयात में जब देखता है तो उन हालात की रोशनी में ये तज्जिया करता है कि लोग मोहब्बत व खलूस व मुरब्बत से बिल्कुल ही बेबहरा हैं और ताने तशने में, इशारों किनायों में, लोगों का मजाक उड़ाने में उनका कोई जवाब नहीं। यानी दुनिया में, या यूं हम कह लें कि दौरे हाजिर में, खुलूस मोहब्बत और मेहर वफा की पैकर हस्तियां ना होने के बराबर हैं और नजरें ऐसे ही लोगों को ढूंढती हैं। इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफा को उनने, मुरब्बत को क्या हुआ। मीर शिकवा कुना है, यानी शिकवा करते हैं कि अगर मोहब्बत, वफा और रवादारी के जज्बात खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोग अपनी गुफ्तगू में ऐसे मफाहिम पैदा कर लेते हैं जो दूसरों की दिलशिकनी का बाइस बनते हैं। और ये भी हकीकत है कि बाज़ औक़ात लोग एहसासे बरतरी में या एहसासे बरतरी जताने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रमज़ो किनाया से भी खूब काम लेते हैं। अहले वफा का पास किसे दोस्ती कहाँ, सरमाया खुलूस है नायाब आजकल। और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि तंज़ो किनाया में कमाल हासिल करने वालों के दिल मेहर मुरब्बत से दूर ही हुआ करते हैं। यानी ऐसे लोग जो दूसरों का दिल दुखाने में माहिर होते हैं और तंज़ो किनाया और रमज़ो इशारा की मदद से लोगों का दिल तोड़ते हैं, उनके दिलों में दूर दूर तक मोहब्बत, वफादारी, मेहरबानी और करम नवाजी का हल्का सा भी शायबा हमें नजर नहीं आता। किससे करें जर्राहते कल्बो नजर की बात, दुनिया ने सुन के तंज के निश्तर लगाए हैं। अजीज तलबा और तालिबात, हमारी ये गजल मुकम्मल हुई।
آخری شعر چونکہ مقطع کا شعر ہے اور عام طور پر اس کی وضاحت نہیں مانگی جاتی، اس لیے ہم نے یہ 5 ہی اشعار کرنے پر اپنا فوکس کیا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر غزل نمبر 2 کی تشریح کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، سلامت رہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ۔